Assalamu alaikum, students. Merchant of Venice. Today we are going to start its homework. Its comprehension paragraph. We are going to start with the comprehension paragraph that is included in your homework of English A. So open your worksheets of English A at page 3. All of you have got your worksheets? Yes. Beta, who will read this paragraph? Maryam Mazhar? Maryam Mazhar, unmute yourself. Ji beta, read this paragraph. William Shakespeare lived in Shakespeare England. beta. William Shakespeare. Lived in England over 400 years ago. He was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. Avon. He studied hard in school, but he did not go to university. After he got married, he moved to London. He is one of the world's greatest writers. He wrote a total of 80 plays. He also wrote poetry, including many love sonnets. He had a great interest in human nature, and all his plays are about this topic. His plays include comedies, romance, histories, and tragedies. Histories and tragedies. He spent most of his life in writing plays of theatre, most for Globe Theatre, which was built in 1598 to 1990. The first recorded performance was of Julius Caesar. Yes, Julius Caesar in September. In September 1599, he died in 1616 on his 52nd birthday. Yes, thank you, beta. Ab, you have read the paragraph. Now you have to find out the answers to these questions. Okay. Now, I'm going to explain the paragraph. William Shakespeare lived in England over 400 years ago. विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड में 400 साल से ज्यादा अरसा पहले रहते थे. He was born in 1564. He was born, वो पैदा हुए in 1564 in Stratford upon Avon. It is a city in England. He studied hard in London. He studied hard in school but didn't go to university. ये मैंने आपको पहले बताया था कि विलियम शेक्सपियर ने स्कूल तक एजुकेशन हासिल की थी और उन्हें मौका ही नहीं मिला यूनिवर्सिटी जाने का, यानी ग्रेजुएशन वो नहीं कर पाए. सेकेंडरी स्कूल तक उन्होंने पढ़ा था, हायर सेकेंडरी तक, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतना नॉलेज था कि ही बिकेम one of the greatest writers of the world. After he got married, he moved to London. और अपनी शादी के बाद वो लंदन मूव कर गए. स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन से वो लंदन शिफ्ट हो गए. He is one of the world's greatest writers. He wrote a total of 38 plays. जो plays, dramas उन्होंने लिखे, they were 38 plays. And he also wrote poetry, including many love sonnets. और उन्होंने poetry भी लिखी, including many love sonnets, जिसमें कई love sonnets भी शामिल हैं. यानी उन्होंने जो poems लिखी, उनमें कई love sonnets थी. Sonnet is a kind of poetry. He had a great interest in human nature. उन्हें human nature में
खास दिलचस्पी थी एंड ऑल हिज प्लेज आर अबाउट दिस टॉपिक, और उनके तमाम प्लेस ह्यूमन नेचर के बारे में ही हैं, इसी टॉपिक के बारे में है। कौन से टॉपिक के? ह्यूमन नेचर के। हिज प्लेस इंक्लूड, उनके प्लेस मुश्तमिल हैं कॉमेडीज, रोमांसेस, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। उनके प्लेस किस किस चीज के मुतालिक हैं, किन किन टॉपिक्स पर हैं? कॉमेडी, जो मजाहिया होते हैं, फनी, रोमांस, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी। He spent most of his time, he spent most of his life इन राइटिंग प्लेस फॉर थिएटर, और ज्यादातर उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजारा इन राइटिंग प्लेस फॉर थिएटर, थिएटर के लिए प्लेस लिखने में, मोस्टली फॉर ग्लोब थिएटर विच वॉज बिल्ट इन 1598 to 99, जो 1598 में बना था ग्लोब थिएटर। ये मोस्टली शेक्सपियर उस थिएटर के साथ अटैच थे और उनके लिखे हुए प्लेस ज्यादातर उसी स्टेज में, उसी थिएटर में स्टेज किए जाते थे, यानी वहीं पे प्ले होते थे। The first recorded performance was of Julius Caesar in September 1599. पहली जो रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस मीन जो सबसे ज्यादा पसंद की गई, दैट वाज, जिसको सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, वो थी जूलियस सीजर। जूलियस सीजर उनका एक, it is one of the one of the most famous plays of William Shakespeare is Julius Caesar. This is a लव स्टोरी, और ये इस को एक्ट किया गया था 1599 में। He died in 1616 on his 52nd birthday, और उनकी डेथ भी विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई 1616 में ऑन हिज 52nd बर्थडे। आपकी उस दिन 52nd बर्थडे थी, उसी दिन आपकी डेथ भी हुई, यानी जिस डे पे आपकी बर्थ हुई उसी पे डेथ हुई। Now come to the questions. Where and when was William Shakespeare born? G. Can anybody answer me? Waleed Numan, unmute yourself and answer. William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. Yes, William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon. Okay. Now come to the next question. This is, how many plays did he write? Maliha Tariq, beta unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें। टीचर क्वेश्चन भी बोल दूं? हाँ जी। How many plays did he write? He wrote a total of 38 plays. Yes, he wrote a total of 38 plays. Now come to question number 3. Rayan Abbas, unmute yourself. हेलो अस्सलाम वालेकुम टीचर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी से क्वेश्चन 3 को रीड आउट करें and answer it. What was he interested in most? ये है he was most interested in human nature and all his plays are about this topic. Yes, he was most interested in human nature and all his plays are about this. Thank you, teacher. चलिए, now come to the next question. Question number 4. जी अलबीना फैसल, unmute yourself बेटा. अस्सलाम वालेकुम टीचर।
Walaikum assalam. But answer next question. His plays includes comedies, romances, histories, and tragedies. Yes. The main topics of his plays include comedies, romances, histories, and tragedies. Now comes next question. This is question number 5. Ismail Asif, unmute yourself. Hello, Assalamu alaikum, teacher. Ji walaikum assalam. Beta, read out question number 5. For which thread he wrote the most? He wrote the most for Globe Theatre, which was built in Globe Theatre. 1598. Yes, he wrote mostly for Globe Theatre, which was, It was built in 1598 to 99. yes, he wrote mostly for Globe Theatre, which was built in 1598 to 99. 1598 to 1599. And last question is, when did the William Shakespeare die? Yes, He died in Hadi Ahmed, unmute yourself. जी हादी बेटा आपका अनम्यूट नहीं हुआ जी. He died in 1616 on his 52nd birthday. Okay? William Shakespeare died in 1616 on his 52nd birthday. Okay, beta. Now come to the next page. This page is done. You have to write the answers in these blank spaces in your worksheet, and also you have to write question answers in your loose sheet as well. ठीक है? इस question answers को आपने paragraph rewrite नहीं करना, लेकिन आपने question answers को loose sheet पे लिखना है. इनको आपने अपनी loose sheet पे जरूर लिखना है बेटा. जी, now come up to the next page, that is vocabulary list. ये आपके words meanings हैं जो आपने लिखने हैं, loose sheet पे भी लिखने हैं और इनको याद भी करना है. वर्कशीट पे लिखने की जरूरत नहीं, because already these are mentioned in your worksheet. एक बार मैं पढ़ा देती हूँ, ये आप सबने याद करने हैं. Valuable. First one is valuable. Valuable mean precious, कीमती. Valuable, precious, कीमती. Number 2, intention, ultimate aim. Intention, इरादा, ultimate aim. इरादा या नियत हम इसको कह सकते हैं. Intention mean ultimate aim. Number 3 is cargo. Cargo क्या है? Luggage carried by ship or plane. जहाज पर ले जाने वाला सामान, जो आप अपना सामान शिप के जरिए या एरोप्लेन पे बोर्डिंग करवाते हैं, भिजवाते हैं जो उसके जरिए, दैट इज द कार्गो. यानी जब जो भी हमारा पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं उनका सामान हो वो कार्गो में जाता है. या अगर आप नहीं भी जा रहे तो आप अपना सामान जो भिजवाते हैं अपने किसी रिलेटिव को या कहीं किसी दूसरे शहर भिजवा रहे हैं या दूसरे मुल्क, तो दैट इज sent by cargo service. Cargo is the luggage carried by ship or plane. Number 4 is dare. Dare mean show courage, जुर्रत. Show courage, जुर्रत दिखाना. Number 5, mercy. Mercy mean pity, रहम. Mercy, pity, रहम. Number 6, generous. Number 6 is generous. Generous किसे कहते हैं? सखी,
फयाज यानी जो बड़ी सखावत करता है, जो बड़ा फयाज है यानी खुले दिल से खर्च करता है। अनसेल्फिश यानी बगैर किसी गर्ज के लोगों की मदद करने वाला, अनसेल्फिश। फ्रीली गिविंग मनी और अदर थिंग्स, और जो लोगों को बगैर किसी लालच के देने वाला है, उनकी मदद करता है। परसुएड, नंबर 7 इज परसुएड। परसुएड मीन टू फोर्स, कन्विंस। परसुएड, टू फोर्स, कन्विंस। तरगीब देना, रागिब करना। तरगीब देना, रागिब करना। नंबर 8 एंक्शियस। Number 8 is anxious, बेताब, बेचैन, eager to know. Anxious mean eager to know, बेताब, बेचैन. Number 9 grateful. Grateful mean thankful, शुक्रगुजार. Grateful, thankful, शुक्रगुजार. Number 10 amusing. Amusing mean, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, amusing, funny, entertaining. Funny, entertaining यानी मजाहिया. Number 11 is racket. Wreck होता है तबाह होना. Racket destroyed, तबाह हो जाना या तबाह कर देना. तबाह किया, destroy किया. Merchant, trader, ताजिर, सौदागर. जो एक जगह से एक सामान लेके दूसरी जगह सेल आउट करता है, ही इज कॉल्ड द ट्रेडर और द मर्चेंट. हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे, आपने पढ़ा ही होगा इस्लामियात में. डेब्ट, डेब्ट, कर्ज, लोन, टेक लोन. डेब्ट, लोन. डेब्ट क्या होता है? कर्जा, लोन. जो हम किसी से कर्ज लेते हैं, दैट इज द लोन. ऑफन, मेनी टाइम्स. OFTEN, ऑफन. इसमें बेटा टी साइलेंट होता है, हम इसको ऑफन बोलते हैं. ऑफन, अक्सर. मेनी टाइम्स. इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद. डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट. Certain, sure, यकीन. Certain, sure, यकीन. Number 17 is prison, jail, कैद. Number 17 is prison, jail, कैद. Number 18 suspicious. Suspicious mean मशकूक, doubtful. मशकूक, doubtful. Number 19 cross, angry, नाराज. ये भी हमने कल पढ़ा था ये वर्ड, क्रॉस, एंग्री, नाराज. प्लेंटी, एक्सेस. एक्सेस क्या होता है? ज्यादा होना, ज्यादती किसी चीज की होना. बहुतात, कसरत या ज्यादती. एक्सेस. प्लेंटी, एक्सेस, बहुतात, कसरत. ठीक है, these are the words. You have to learn their English meanings as well as उर्दू meanings. बेटा आपके पेपर में इंग्लिश मीनिंग भी आएंगे और उर्दू मीनिंग भी, इसलिए आपने ये सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से याद करने हैं. एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न टू यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस.
Now come to the next page. This is page number 5. इस पे बेटा अपने टॉप पे डेट मेंशन करनी है। ये तीनों पेजेस जो काम आप कर रहे हैं उन पे साथ साथ डेट मेंशन करते जाएं। 71 थी शायद, 71 इधर थी, इधर 71 थी और इधर 64 थी, क्योंकि यहाँ इसमें तो मेरा नेट ही ड्रॉप होता रहा। जी बेटा, नाउ कम अप टू नेक्स्ट पेज। यूज द वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब इसमें आपने इन वोकैबुलरी वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। उसके लिए बेटा आप यहाँ पे देखें, ये डेट की कॉलम में, डेट की स्पेस में आपने डेट मेंशन करनी है। व्हाट्स द डेट टुडे? अप्रैल 07, कॉमा, मेंशन द डेट विद पेन, अप्रैल 07, कॉमा 2021। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे आपके सामने स्क्रीन पे गिवन है इसी तरह से आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। फिर आपने नंबर 1 पे वहां वोकैबुलरी लिस्ट से फर्स्ट वर्ड कॉपी करना है, वैल्यूएबल। यू हैव टू राइट इट विद योर ब्लू मार्कर। ठीक है, मार्कर विद ब्लू इंक, उससे आपने लिखना है और राउंड टिप मार्कर लेना है, इंग्लिश वाला। देन राइट इट सेंटेंस। नंबर ए, एक सेंटेंस मैं आपको लिखवा रही हूं, फिलहाल आप यही एक लिख लें, सेकेंड सेंटेंस अभी मत लिखें, यही एक सेंटेंस लिखें। माई अंकल गेव मी अ वैल्यूएबल वॉच ऑन माई बर्थडे। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपने यहाँ पे भी लिखने हैं और अपनी लूज शीट पे भी लिखने हैं बाद में, याद करके, यहाँ से याद करके फिर आप लूज शीट पे लिखें और वो लूज शीट्स आपने स्कूल में सबमिट करवानी होंगी। नंबर सेकेंड इज इंटेंशन। इंटेंशन, इरादा, नीयत। इनके अगर आप चाहें तो यहाँ सामने उर्दू मीनिंग्स भी लिख सकते हैं। मैंने इनके मीनिंग्स नहीं लिखे, मैंने सिर्फ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं। वैल्यूएबल, यहाँ पे आप उसका मीनिंग लिख सकते हैं, प्रीशियस, और साथ सेंटेंस लिखने, माई अंकल गेव मी अ वैल्यूएबल वॉच ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन। I had no intention to hurt your feelings. वर्ड बाद में लिखें बेटा। जिनके पास अभी एट द स्पॉट मार्कर अवेलेबल नहीं है वो सिर्फ सेंटेंसेस लिख लें, वर्ड्स बाद में मार्कर पकड़ के लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये काम सीक्वेंस में ही करना है। आपने मार्कर से आपने वर्ड लिखना है और उसके सामने बाद में आप यहाँ पे मीनिंग्स, इसके इंग्लिश मीनिंग भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। देन कम्स द वर्ड कार्गो। माय अंकल सेंट हिज लगेज थ्रू PIA cargo service from America. Number 4 is, beta, do your work in neat handwriting. Number 4 is dare. Dare? Dare mean show courage. I cannot dare to argue with my father in this matter. I cannot dare to argue with my father in this matter. Number 5 is mercy. We should always
show mercy, we should always show mercy on poor people and animals. बेटा आज आप सिर्फ ये 5 सेंटेंसेस कर लें, बाकी मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है?